student of BPSC that there is no class of economics run by any one teacher, and mostly classes run by teachers in Hindi, but this class just for English student mediums and for those students who want take class for graduation or other competitive exams. So this is a class for economics. What we will study in this class. Economics for BPSC student, auditor, and this class will be helpful for mains and PT and for other exams, and those who want to take BA, MA student. So this class will be for those students. And now we come to the point. You know very well about auditor exam. There will be 246 seats, and these exams will be held after BPSC, 67 BPSC. Now we take this class, okay? And hello, how are you, all of you? So here we start this class for BPSC student, and maybe so here we will study what this class for economics. So here is first question. What is economics? What is economics? This is the first question. What is economics? So economics, what is economics? And the next is, so, and next question is fundamental problem of economics. So these are the major concern for today class. In this class we will study all this. So now we see what is economics. हम इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं? तो what is economics? इकोनॉमिक्स क्या है? Economics means best utilization of our resources in economical way, in cheap and best way. Utilization of resources
utilization of resources in best and effective way to produce goods and services. Here is what you can see. What is economics? In economics, what we study? In economics, we study utilization of resources. Here, we study utilization of resources in best and effective way to produce goods and services. And here, talk what is resource. Here, resource means land, labor, and capital. These are resources that are used for production. So here is resources that are used for production. That for production. So this. So what is economy? In a economy, all activity, we can say that all activity of human being for production to live is called economics. So here, all activity of human being for production to live or to maintain life is called economics. This is, now we can see other way. Economics is the social science that study production, distribution, consumption of goods and services. Here, what? Economics is the social science that study the production, distribution and consumption of goods and services. Economics focus on the behavior and interaction of economic agents and how economic work. These are the definition. And now we see here one thing. Now we see these are the economists. Paul Samuelson, we know about. Sometime people they ask, Paul Samuelson, American economist, and the next is
we see here. So here we see what is economics. You see, economics is a social science concerned with production, distribution and consumption of goods and services. यानी इसमें कहा गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, वह सोशल साइंस है। इस तरह का सोशल साइंस, इस तरह का विज्ञान है जो कंसर्न रखता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका संबंध है प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से और गुड्स के कंजप्शन से और गुड्स और सर्विसेज की। तो इसमें कहता है कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन किसका पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विस का। इट स्टडी हाउ इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड नेशन मेक चॉइस अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज। इट स्टडीज, यह स्टडी करता है। क्या करता है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट और कोई भी देश मेक चॉइस, एक चॉइस करता है कि हम अपने रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन करें। दिस आर द मेजर कंसर्न फॉर इकोनॉमिक्स इज हाउ टू अ गवर्नमेंट, इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन प्रोड्यूस देयर गुड्स। तो वो अपनी गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो कहता है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज क्या है, ये जो रिसोर्सेज है उसके पास जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और क्या, एंड तो ये कहता है कि ये अपनी रिसोर्सेज का कैसे इनका इस्तेमाल करता है। हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, these are the major concern. And one thing I want to say that if you study economics, then you should learn how to utilize words in best and effective way, because if you don't know how to use of exact word for exact things, then you are unable to express. So this is class for BPSC student, graduate student and MBA student. So whatever the point we are discussing and whatever the words we are using, that is the most important. So sometime whenever I get time, I can use that words in Hindi also. So now we see, so economics focus on the action of human being, means that human beings means human activity, कहता है कि इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। कहता है कि इकोनॉमिक्स जो फोकस करता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को फोकस करता है। ह्यूमन एक्टिविटी क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल। दिस आर द मेजर कंसर्न। तो कहता है कि बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट ह्यूमन एक्ट विथ रेशनल बिहेवियर सीकिंग द मोस्ट ऑप्टिमम लेवल ऑफ बेनिफिट एंड यूटिलिटी। अब इसमें बात क्या कहता है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहता है कि बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ ह्यूमन एक्ट, कहता है
कि हम इसमें इकोनॉमिक्स में क्या किस चीज़ की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या एक सोशल साइंस है जिसमें हम प्रोडक्शन में उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी कंजप्शन की बात करते हैं। किस चीज़ की? गुड्स की। गुड्स को कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और कैसे उसका यूज़ किया जा रहा है। कहते हैं इसके बाद इसमें हम एक इंडिविजुअल, जो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, बिजनेस है, गवर्नमेंट्स है, वो रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज करती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। किस चीज़ का? कि वो अपने रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन करती है। दिस इज द मेजर कंसर्न। तो देखिए अब कहता है कि इकोनॉमिक्स में किस चीज़ पे फोकस होता है? फोकस ऑफ एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग्स का जो एक्शन है उस पे ही इसका क्या रहता है? फोकस रहता है। तो अब नेक्स्ट चीज़ों को हम थोड़ा सा देखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। Sorry for that. Now the next point is here. So what हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स फोकस करता है एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग का, और किसका? कैसा? बेस्ड ऑन एजम्पशन। कहता है ऐसे एजम्पशन, उन मान्यताओं पे। इसमें कहता है उन ह्यूमन एक्ट्स की स्टडी करता है जो कि रेशनल बिहेवियर हो, जिनका बिहेवियर का हो, क्या हो? रैशनल हो, नॉर्मल हो, उन्हीं की इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की तो हम स्टडी करते ही करते हैं, पर किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटी की स्टडी करते हैं? जिनका बिहेवियर नॉर्मल हो, यानी जिनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, कोई पागल है, किसी को और कोई एक्सेप्शनल है, उनकी हम स्टडीज़ में नहीं करते हैं। कहता है सीकिंग द मोस्ट ऑप्टिमम लेवल ऑफ बेनिफिट्स और यूटिलिटी। तो एक जो नॉर्मल बिहेवियर वाले लोग हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है कि वे लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट वो चाहते हैं, और वो अपनी रिसोर्सेज का क्या? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। यानी कुछ भी चीज़ वो क्या नहीं करना चाहते? वेस्टेज नहीं करना चाहते हैं। कहता है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक आर द स्टडी ऑफ लेबर एंड ट्रेड। कहता है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मेन जो नींव है वो किसके थ्रू है? लेबर और ट्रेड, यानी व्यापार और ट्रेड की बात करता है। यानी इकोनॉमिक्स में जो मेजर कंसर्न है, जो इसकी नींव डाली गई है, वो किस पे डाली गई है? लेबर। आप कोई भी काम करते हैं उसकी कॉस्टिंग क्या होगी? और ट्रेड, व्यापार के थ्रू ही सारी चीज़ें डिसाइडेड होती है। सिंस देयर आर मेनी पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर एंड मेनी डिफरेंट वे टू एक्वायर रिसोर्सेज। कहता है सिंस, चूँकि देयर आर मेनी पॉसिबल एप्लीकेशन, बहुत तरह के एप्लीकेशन है ह्यूमन लेबर्स के। मतलब एक किसान आदमी खेती कर सकता है, खेतों में मजदूरी कर सकता है, वही आदमी बिजनेस कर सकता है, वही आदमी टीचिंग कर सकता है। उसके पास डिफरेंट ऑप्शन है, तो वो क्या करना चाहेगा? अपने आप को किस तरीके से यूज़ करना चाहेगा? या फिर आप ये सोचिए कि एक खेत है, उस खेत में हम गेहूँ भी बो सकते हैं, चावल भी बो सकते हैं, सब्जी भी बो सकते हैं, तो आप क्या बोएंगे? तो कहने का मतलब है जो आपको इकोनॉमिकल लगे, जो आपके लिए आप अपनी रिसोर्सेज को जहाँ पर बेस्ट ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे, आप वही चीज़ का काम करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है सिंस देयर आर मेनी पॉसिबल वे एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर। एक लेबर अपने आप को कई तरह से काम कर सकता है,
एंड मैनी डिफरेंट वे टू एक्वायर रिसोर्सेज, और हम अपनी रिसोर्सेज को कई तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इट इज़ द टास्क ऑफ इकोनॉमी टू डिटरमाइन विच मेथड इल्ड द बेस्ट रिजल्ट। तो आप इस चीज़ का, ये इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। देखिए, अब आप लोग कोई बच्चे नहीं हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की करते हैं, या किसी भी एग्ज़ाम्स की करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जहाँ पे आपको आंसर देना है, और इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब इकोनॉमिक्स बिकॉज यू शुड हैव नॉलेज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स एंड you should make aware of those word how to use, and this is the class for revision for those student. So ये जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स, अब आपने क्या समझा इस पैराग्राफ से, आप यही समझते हैं, देखिए पूरा, कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है। क्या है? सोशल साइंस है, जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं, हम किसी भी सामान का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, और दूसरा आप उसका उत्पादन कैसे करेंगे, उस उत्पादन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, और उसका कंजप्शन कहाँ पे करेंगे, इसकी स्टडी होती है। उसके बाद कहता है कि इसका जो मेजर कंसर्न है प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से। तीसरी बात कहता है कि इसमें हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं, कहते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट है और बिजनेसमैन है, वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करता है। तीसरा हमने समझने की कोशिश की इसमें किस तरह, इसमें एक मान्यता है, एक अजम्पशन है कि हम इसमें उन्हीं ह्यूमन एक्टिविटी का स्टडी करते हैं जो कि नॉर्मल है, हम उन्हीं की बातों को समझने की कोशिश करते हैं जो क्या नॉर्मल है। अब नॉर्मल पीपल्स की बात माइक्रो इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिक्स में नहीं की जाती है। तीसरी बात है, यहाँ पे कहता है कि ये सारा चीज़ का कंसर्न क्या है, लेबर मार्केट को समझना और ट्रेड, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी बिकेगी जब उसकी डिमांड होगी और जब तभी हम उसका सप्लाई करेंगे। अब इसके बाद कहता है कि जो ह्यूमन लेबर है, ह्यूमन लेबर को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन है, मैं कहीं पे स्कूल में भी पढ़ा सकता हूँ, मैं कहीं कॉलेज में भी पढ़ा सकता हूँ। तो कहता है कि मैं कहीं पे वर्कशॉप में भी काम कर सकता हूँ। तो मैं अपनी रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, ये भी एक मेजर कंसर्न है। और कहता है कि इन सब चीज़ों का मेन क्या है कि इकोनॉमिक टू डिटरमाइन विच मेथड इज द बेस्ट रिजल्ट, कि कौन सा मेथड हमें बेस्ट रिजल्ट देता है। अब आते हैं, इकोनॉमिक कैन बी जनरली बी ब्रोक डाउन इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इस चीज़ को आप समझिए, इकोनॉमिक्स कैन जनरली बी broken down into microeconomics and macroeconomics। मीन्स इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच हैं। इकोनॉमिक्स की क्या है, दो ब्रांच है, एक मैक्रो और दूसरा क्या है, माइक्रो। तो कहता है इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं। इकोनॉमिक्स के कितनी ब्रांचेस हैं, दो ब्रांचेस हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। जैसे कि हिस्ट्री का 2-3 ब्रांचेस हैं, हर सब्जेक्ट बायोलॉजी का माइक्रो बायोलॉजी और मैक्रो बायोलॉजी। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का कितनी ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, विच कंसंट्रेट on the behavior of the economy as a whole। So microeconomy is the economy that study or that deal the problem of whole economics, deal the problem
ऑफ होल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। तो आप समझिए कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसकी, पूरे इकोनॉमी की प्रॉब्लम को डील करता है। अब पूरे इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या होगी, बेरोजगारी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंकिंग। कहता है कि जो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वैसी चीज़ों की स्टडी करते हैं कि जो पूरे क्या इकोनॉमी यानी पूरे देश की प्रॉब्लम को डील करता है। इसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग, आपकी ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम की, ये पूरे देश की प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, इन सब की स्टडी करते हैं। हम इसमें इन्वेस्टमेंट की स्टडी करते हैं, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, यानी पूरी तरह से कॉस्टिंग की स्टडी करते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करती है और जिससे हमारा क्या इंटरनेशनल ट्रेड पे भी असर पड़ता है। तो इसमें इंटरनेशनल पॉलिसीज की भी स्टडी करते हैं। तो देखिए इकोनॉमी यहाँ पर कहता है इकोनॉमी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, विच फोकस ऑन इंडिविजुअल पीपल एंड बिजनेसमैन। तो कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ की डील करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स द इकोनॉमी डील विद द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी छोटे लेवल पे किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम माइक्रो लेवल पर गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते हैं माइक्रो लेवल पर। तो किसी भी और किसी कंपनीज की प्रॉब्लम की बात करते हैं, यानी बिजनेस की बात करते हैं। इसमें इसकी प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस, इंडिविजुअल पीपल और बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस की प्रॉब्लम क्या होगी, अपने डिमांड्स को बढ़ाना, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करना। तो किसी भी बिजनेस की प्रॉब्लम है डिमांड को मेंटेन करना, सप्लाई को बढ़ाना, डिमांड को देखना, सप्लाई को देखना, मार्केट को समझना और उस ढंग से स्टडी करना। तो कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम क्या है और बिजनेसमैन की प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट को समझे, कंज्यूमर को समझे, सप्लाई को समझे। ये सारा प्रॉब्लम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है कि जिसमें हम क्या पूरी इकोनॉमी, बेरोजगारी की बात करता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। इनमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है, बैंकिंग एक्टिविटी की बात करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज की बात करता है, टैक्स की बात करता है। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं। तो यहाँ पे अब इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि की टेक वे, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एलोकेट scarce resources for production, distribution, consumption, both individually and collectively। तो यहाँ पे कहता क्या है, इस बात को समझिए। कहता है कि इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, हम इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश करते हैं हाउ पीपल कैसे एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज, जो लोग होते हैं उनके पास जो भी स्केयर रिसोर्स है, जिस रिसोर्सेज की कमी है, फॉर प्रोडक्शन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और कंजप्शन करने के लिए। कहता है कि इकोनॉमिक्स में जो भी आपके पास रिसोर्सेज है आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। दिस इज़ द मेजर कंसर्न फॉर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम इन्हीं चीज़ों की स्टडी करते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब कहता है कि 2 मेजर टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स 2 तरह का है। एक क्या है, एक कहता है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है और जो कि
हमने पढ़ा, और दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं, राष्ट्र की प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रखा है इकोनॉमिक्स इज स्पेशली कंसर्न विद इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड यूज मॉडल्स एजम्पशन टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट इंसेंटिव एंड पॉलिसी दैट विल मैक्सिमाइज इफिशियंसी। कहता है इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन और एक्सचेंज की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं। और किस तरह की प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो कहता है यहाँ पर कि जो प्रोडक्शन की बात करते हैं वो कैसा, कंसर्न विद एफिशिएंसी, मतलब जो भी हम प्रोडक्शन करें वो एफिशिएंसी के साथ करें, पूरी मतलब उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। और कहता है इसके बाद यूज मॉडल्स एंड एजम्पशन, इस पे जो भी हम एजम्पशन, जो भी मान्यताएं होता है, टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट इट। इन सब का मकसद क्या होता है कि क्रिएट इंसेंटिविटी एंड पॉलिसी दैट विल मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, मतलब हम जो भी प्रोडक्शन करें, जो भी कंजप्शन करें, ताकि वो मार्केट में आए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्या दे, उनको सेटिस्फाई करे। कहता है इकोनॉमिस्ट फॉर्मुलेट एंड पब्लिश नंबरस इकोनॉमिक इंडिकेटर। कहता है जो इकोनॉमिस्ट है वो पब्लिश करते रहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर सच एज जीडीपी, कंजप्शन, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके द्वारा हमें ये पता चलता है, इंडिकेटर्स की, इनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि उस देश का अर्थव्यवस्था कैसी है। यानी थ्रू नेशनल इनकम वी कैन कंपेयर टू कंट्रीज पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड, एंड थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वी कैन understand how to people live in that country and what are their purchasing power। तो इनके द्वारा उस देश, दूसरे राष्ट्र की इनकम हमें पता चलती है कि उनकी इनकम क्या है। दो देशों के बीच में हमें ये पता चल सकता है कि दो देशों के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं जीडीपी के थ्रू, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा हमें उनकी क्षमता पता चलती है खरीदने की, कि वहाँ पे किस तरह का कंज्यूमर है। अब कहता है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, यू गिव दिस स्टार मार्क, व्हाट इज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो दिस यू कैन अंडरस्टैंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या है, दीज आर economic can be run by the capitalist, socialist or communism. So now we come to the point, understanding economics। अब कहता है कि इकोनॉमिक्स की एक अंडरस्टैंडिंग आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ा वो एक डेफिनेशन था। अब हम इस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की समझ। वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्ड इकोनॉमिक थिंकर वॉज द 18th century BC farmer poet Harrison, who wrote the labor, materials and time need to be allocated resources overcome scarcity। कहता है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्ड इकोनॉमिक थिंकर, जो भी इकोनॉमिक थिंकर है वो कहता है 800 BC में, जो उस समय जो ग्रीक जो था वहाँ पर जो फार्मर थे, पोएट थे, वे लोग लेबर के बारे में लिखते थे, मटेरियल्स के बारे में लिखते थे,
और कहता है कि ज़रूरत के हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उनके बारे में बातचीत किया जा सकता है। बट फाउंडिंग द मॉडर्न वेस्टर्न इकोनॉमिक occurred much later, generally credited to the publication of a Scottish philosopher आदम स्मिथ। कहता है कि जो इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत हुई थी वो 8th सेंचुरी से हुई थी, और उस समय इकोनॉमिक्स का जो कंसर्न था वो किसी चीज़ का उत्पादन से ही लेकर था। लेबर के बारे में स्टडी किया जाता था उस समय भी जो मेजर कंसर्न थे उत्पादन और रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज किया जाए, उस समय भी यही कंसर्न था। अब आप यहाँ से चीज़ों को देखिए। कहता है कि जब मॉडर्न वेस्टर्न टाइम में मॉडर्न वेस्टर्न इकोनॉमिक्स जब आया तो कहता है कि उस समय जो आदम स्मिथ जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं वो कौन थे? स्कॉटिश फिलोसोफर थे, और इनकी एक बुक आई एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें इन्होंने एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। Adam Smith is called father of economics, and his book published in 1776, and that book name was An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation। इस बुक में इन्होंने ये लिखा था कि कोई भी राष्ट्र, देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि कोई भी राष्ट्र अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करता है, और उसका कहता है कि कोई भी राष्ट्र धनी क्यों है। वेल्थ ऑफ नेशन, जो कोई भी राष्ट्र क्या है, धनी क्यों है, और उसके रिसोर्सेज क्या क्या है। इन चीज़ों पे इन्होंने क्या किया था? जोर दिया था। अब देखने का आप कोशिश करें नेक्स्ट चीज जो है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये कहता है द प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम, ये भी समझना है। इकोनॉमिक्स की क्या सिद्धांत, जो भी सिद्धांत है, जो भी प्रॉब्लम है, इज दैट ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट एंड ऑक्यूपाई अ लिमिटेड मीन्स। कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो भी सिद्धांत है, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, माइक्रो जो भी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है, तो कहता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, और जो हमारी वांट्स है दोज आर लिमिट। हमारी जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है, और जो हमारे जो रिसोर्सेस है, जो उनको फुलफिल करने वाले हैं, वो क्या है? अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर उसको फुलफिल करने के लिए हमारी जो वांट्स है वो क्या है? लिमिटेड है। तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्स बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, सो वी आर अनेबल to satisfy, and it is very hard to get satisfaction because we cannot fulfill our all wants with having limited resource। कहने का मतलब है कि जो हमारी इच्छा है वो अनंत है, और उनके लिए जो भी संसाधन है उसको पूरा करने के लिए वो क्या है? कम है। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हम सारी इच्छाओं की क्या नहीं कर सकते? पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि हम भी क्या हो जाते हैं? अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो कहता है या फॉर दिस रीजन द कंसेप्ट ऑफ इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी आर पैरामीटर बाय इकोनॉमिस्ट। कहता है कि इसकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज का क्या करें? इफिशिएंसी,
यानी जो भी रिसोर्सेज है उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम बेस्ट रिजल्ट दे सके, हमको क्या मिले, मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड मोर यूज ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। कहता है कि वो तभी होगी जब हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, और हमारी प्रोडक्शन कब बढ़ेगी, जब हमारी रिसोर्सेज क्या होगी, बेस्ट यूटिलाइज होंगे। यानी हमारे पास जो भी संसाधन है, जब हम उनको बेस्ट तरीके से यूज़ करना सीख जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बेस्ट ढंग से यूटिलाइज करेंगे और हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा। कहता है दे आर गुड एंड कुड लीड टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहता है कि जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब होंगे, ठीक है, तब क्या होगा, जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ने से हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगी, हमारी इनकम बढ़ेगी। दिस आर द मेजर कंसर्न। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहां पर दो बात आती है। यहां पर आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, दिस इज क्लास फॉर दोज स्टूडेंट हु आर फ्रॉम बीपीएससी बैकग्राउंड एंड अब हम समझने की कोशिश करेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कहता है कि इकोनॉमिक्स कितने तरह के होते हैं। तो हमें समझना होगा जो इकोनॉमिक्स है वो दो तरह के हैं। एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इसी के साथ अब आप कुछ और समझने की कोशिश कीजिए, वो ये कि आप ये समझिए यहां पर देखिए, जब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात आएगी तो हम कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन मैटर कम्स टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, देन आंसर विल बी कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। और ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांच हैं, तो हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक्स के मेजरली दो ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। So you can see difference of type of economics and branch of economics. Here micro and macro, these are the branch of economics. Economics further divided in two parts, macro and micro, and type of economics is capitalist and socialist. अब हम आते हैं यहां पर नेक्स्ट, जो यहां पर है इशू, कहता है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो कहता है
देखिए, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज जनरली ब्रोकन डाउन इन टू डिसिप्लिन। कहता है कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल, कंज्यूमर एंड फर्म मेक डिसीजन एंड दिस इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट कैन बी सिंगल पर्सन, हाउस होल्ड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसी। कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो फोकस करता है वो हाउ इंडिविजुअल, कंज्यूमर, फर्म मेक डिसीजन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो एक इंडिविजुअल कंपनी है, इंडिविजुअल फर्म्स है, वे अपना डिसीजन किस तरीके से लेते हैं, हाउ इंडिविजुअल, कंज्यूमर और फर्म मेक डिसीजन। और कहता है कि दिस इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट कैन बी सिंगल, हाउस होल्ड। और कहता है कि ये जो डिसीजन मेकिंग है वो एक सिंगल पर्सन भी ले सकता है, हाउस होल्ड भी ले सकता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकती है, कंपनियां भी ले सकती है, पर उसका बेस क्या होना चाहिए, क्या, फॉर प्रोडक्शन। कहता है एनालाइजिंग सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कहता है कि कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो उसमें हम क्या एनालाइज करते हैं, ह्यूमन का बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस एंड वाई दे डिमांड व्हाट दे डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल। तो कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। कहता है कि इसमें हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट्स की स्टडी करते हैं और कंपनीज की स्टडी करते हैं कि वो अपना प्रोडक्शन को कैसे मेंटेन करते हैं। दूसरा बात है कि इसमें हम नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो कहता है कि जो इसमें स्टडी करते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, जो ह्यूमन का बिहेवियर है, जब किसी चीज़ का प्राइस जब बढ़ता है तो वो किसके बेस पर डिमांड कितना करता है, किसी प्राइस, सर्टेन प्राइस को, किस डिमांड को, वो अपनी डिमांड को कैसे पूरा करता है डिफरेंट प्राइस पर। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वो अपनी डिमांड को कैसे घटाता है या बढ़ाता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। तो देखिए ये जो आपके पास साइट है, दिस इज़ द बेस्ट नोट्स। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो कहता है कि देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है हाउ दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस। जो कंज्यूमर है वो अपने आप को प्राइस के चेंज होने की वजह से वो किस तरीके से डिमांड को बदलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई डिफरेंट गुड्स आर वैल्यूड डिफरेंटली। कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि अलग अलग चीज़ों का प्राइस अलग अलग क्यों है। देखिए पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, बट स्टिल देयर वाटर प्राइस इज लोअर देन डायमंड, एंड डायमंड वी कैन नॉट कंज्यूम डायमंड, बट डायमंड प्राइस इज मोर देन वाटर। मतलब की बात है कि देखिए जो हम हीरा है, हीरा हमारे कोई यूज़ का चीज़ नहीं है पर उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, पर वही जो पानी है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पर उसका प्राइस क्या है, कम है। तो जो इकोनॉमिक्स है वो ये इसका आंसर देता है कि हीरे का प्राइस क्यों ज़्यादा है और पानी का प्राइस क्यों कम है। तो कहता है कि इसमें हम स्टडी क्या करते हैं कि कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो वो डिमांड कैसे कैसे करता है। इसके बाद कहता है हाउ इंडिविजुअल मेक फाइनेंशियल डिसीजन। कोई भी कंज्यूमर फाइनेंशियल डिसीजन को कैसे लेता है और वह कैसे व्यापार करता है, इन सारी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है
उसका रेंज क्या है, बहुत ही क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक तो कहता है कि डायनेमिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड टू द इफिशियंसी एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब समझिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहता है कि डायनेमिक मतलब हर वक्त डिमांड और सप्लाई बदलते रहते हैं, और कहता है जो डिमांड और सप्लाई जो बदलते हैं उसकी वजह क्या होती है, वो कॉस्ट से जुड़ा होता है, और कॉस्ट प्रोडक्शन से जुड़ा रहता है। कहता है कि अगर कॉस्ट इट्स ओके, thank you for that. Now we go for that, but I'm telling you that if you are a student of BPSC, then you can understand, because we have to cover whole syllabus in a very fast way. So here this class is for those students who want to take class, who are genuine student for BPSC. This class for those students. So here, and we will, this is a fast track class, and within 15 days, within 20 days, this class will be finished. So तो यहाँ पर चीज़ क्या आती है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कहता है कि डिमांड और सप्लाई की डायनेमिक चेंजेस को पढ़ते हैं, समझते हैं। अब किसी भी चीज़ की डिमांड क्यों बढ़ रही है, वो कॉस्टिंग की वजह से और प्रोडक्शन की वजह से, और किसी चीज़ की सप्लाई क्यों बढ़ रही है, कॉस्टिंग और सब किसकी वजह से, प्रोडक्शन की वजह से। कहता है दे ऑल्सो इंक्लूड हाउ लेबर इज डिवाइडेड एंड एलोकेटेड। कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लेबर की भी भूमिका को भी समझते हैं, क्योंकि लेबर अगर महंगा होगा तो वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो लेबर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। How business firms are organized and function, how people approach uncertainty, risk and strategic game theory। तो कहता है कि how labor are organized, company are organized, and its impact on how people take risk, how much people take risk to produce those goods. It is also factor for producing any goods. So here is, this is the major concern। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। देखिए, इससे बेहतर I give you surety that nobody can explain all these things in this way। हो सकता है कि जो नए लोग हो उनको मेरी बातें ना समझ में आ रही हो, पर अगर आपने माइक्रो स्टडी किया हुआ है, बीपीएससी के लेवल्स के हैं, मेंस लिखने जा रहे हैं, ऑडिटरशिप के लिए है, तो दिस इज़ क्लास फॉर दोस स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास जो भी बुक्स होंगे उनमें कैसे पढ़ाया जाता होगा वो आपको खुद पता है, पर ये एकदम नए तरीके से मैं नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास यहीं तक फिनिश हो जाएगी और हम नेक्स्ट क्लास को कल शुरू करेंगे। तो दिस क्लास विल बी हेल्ड फॉर 20 days, and within 20 days we will finish whole class. Thank you for everyone for joining this class। और अगर आपको अच्छे लगे तो ये, if you feel good this content, then you will share।